Request students to please be seated. So I would now like to request Professor Sheila Mishra, convener of the seminar, to welcome Professor Dalal, former head psychiatry department KGM. I request you all please give a round of applause. I request Professor Masood Siddiqui sir, tall to Professor Dalal. Again, Professor Sheila Mishra, convener of the seminar, present. Statistics present the what to Professor Yeah, and Dr. Amresh Srivastava has joined us online. So we are also welcoming you, sir. I request you all to please give a round of applause to sir. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से सादर प्रणाम I request you all to give a round of applause to sir. I now request Dr. Ashok Kumar to present the award to Professor Sheila Mishra, convener of the seminar on mental health. I now invite Professor Masood Siddiqui, Head Department of the Statistics and co-chairperson of the seminar, to tell us more about this and to welcome us. Thank you, Dr. Shambhavi. Good morning. So, at the first, on the behalf of the Department of Statistics as well as the organizing committee of the seminar, I would like to welcome our chief guest, a very respected Professor P.K. Dalal, sir. So to accept our invitation, and he is an apt person for the seminar because he deals with all these situations which are taking a big way or a big shape in the coming generation, even in this generation also. We would like to welcome our Dean, Professor Rai sir, who readily accept our invitations, and he is present here. And apart from all the dignitaries on the dais, we would like to welcome all the dignitaries of the dais belonging to the different domains. Obviously, they are the concerning domains, as well as all the guests, all the student participants. And we would like to welcome Dr. Amresh Srivastava also, who is Professor Emeritus in the Western University, London, Oranto, Canada, right? He is present online since he is outside the country, and he will be delivering or he will be sharing his words of knowledge with us also during the seminar.
So on behalf of the Department of Statistics, we would like to welcome everyone present online as well as offline to this seminar. And we hope that we will be having a good discourse related to the very pressing problem of the mental health. And the theme that we have thought of is also very apt, like the mental health is a universal human right. So along with the different questions, now the emotional question is also taking a big way. So all these things are related. So we will be having a fruitful and an insightful discussion. So welcome you all to this seminar. Thank you. Thank you, sir. In this series, I would like to now invite Professor Sheila Mishra. She is the convener of this seminar, and this seminar could only happen because of her. So I would like to invite you, ma'am, to tell all of us more about the importance of this day and why we are celebrating it today. मंच पर उपस्थित परम आदरणीय आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर पी.के. दलाल साहब, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस के गार्जियन प्रोफेसर डीन फैकल्टी ऑफ साइंस एंड गार्जियन ऑफ द होल फैकल्टी ऑफ साइंस, हेड डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोफेसर मसूद सिद्दीकी जी, मिस्टर एच.के. दीक्षित जी, other all Shobit Narayan ji, who is also working very hard in this field, and all the esteemed guests, faculty members, students, and supporting staff. आज का दिन हम सभी को मालूम है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, और इस मेंटल हेल्थ डे की थीम भी है कि मेंटल हेल्थ हम सभी का यूनिवर्सल राइट है। तो ये यूनिवर्सल राइट क्यों है और क्यों हमारे लिए मेंटल हेल्थ पर बात करना, उसके बारे में समझना क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हम लोगों ने इंडो कैनेडियन जो इनिशिएटिव है मानसिक शक्ति और डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और इसके साथ ही फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, इन ट्रस्ट के साथ मिल करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मुख्य कारण ये है कि आज विश्व में जो सबसे अधिक चिंता का विषय है वो है मानसिक स्वास्थ्य, और वो भी सबसे अधिक जो उससे प्रभावित ग्रुप है वो है छात्र छात्राओं, विद्यार्थियों और युवाओं का। और ये है ऐसा विषय है कि हमारे पास एक ही इंस्ट्रूमेंट ऐसा ईश्वर ने दिया है जिसके माध्यम से हम सभी ज्ञान अर्जित करते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट अगर हमारा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके बारे में हमारी समझ थोड़ी कम है, तो हम ये जान नहीं पाते कि हमें अपने मस्तिष्क को किस प्रकार से उस अच्छी स्थिति में रखना है जिससे हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों के साथ साथ अपने जीवन के उच्चतर लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकें। तो इसी उद्देश्य के साथ हमने आज के इस सेमिनार को रखा है। इसमें हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं बाहर से जुड़े हुए और जिन्होंने मानसिक शक्ति के इनिशिएटिव को भारत में भी लॉन्च किया है, ऐसे साइकियाट्रिस्ट कनाडा के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर अमरीश श्रीवास्तव जी, वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शिवेंद्र द्विवेदी जो कई दशकों से भारत में स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों में निरंतर किसी न किसी प्रकार से योगदान देते आ रहे हैं, और मिस्टर एच.के. दीक्षित जी जो उनकी तरफ से उन सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। आप सभी के माध्यम से हम सब जानेंगे, समझेंगे कि कैसे हम अपने मस्तिष्क को, अपने मन को शांत रखते हुए इसका सबसे अच्छा उपयोग करने योग्य इसको बनाए रखें। यही इसका उद्देश्य है। हम सभी का उद्देश्य है कि जीवन में शांति प्राप्त करें, सुख प्राप्त करें, और वही चीज ऐसी है जो इस समय सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रही है। आपने 2 दिन पहले देखा और अभी भी जो चल रहा है, जो पूरे विश्व में युद्ध की विभीषिका है, वो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में प्रारंभ होती है। क्यों ऐसा है कि हम लोगों को स्वीकार नहीं कर पाते? क्यों ऐसा है कि अपने अहंकार के साथ साथ हम दूसरों की सुख शांति को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते?
कैसे हम अपने मस्तिष्क को कंट्रोल करें कि हम सभी के साथ सह अस्तित्व में खुशी खुशी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इन सभी आयामों पर विस्तार से हम अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से जानेंगे। तो इसी के साथ आज आप जब अपने मुख्य अतिथि को सुनेंगे तो और भी स्पष्टता होगी कि कैसे हम मस्तिष्क के स्वास्थ्य को अचीव कर सकते हैं लाइफ में। आप सभी का जो इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, विशेष करके हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर आलोक राय जी, जिनके कारण हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों को बहुत ही सहजता से कर पाते हैं, और हमारे डीन साहब जो हमेशा इस तरह के कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए स्वयं उपस्थित होते हैं। आप सभी के सहयोग से और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के सहयोग से, कलीग्स के सहयोग से हम सभी इस कार्य को कर रहे हैं। आप सभी के साथ मिल करके हम आज इस कार्यशाला में मस्तिष्क के स्वस्थ रहने के उपाय जानेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। So I think ma'am has very rightly said that the importance of today's day and why we are here today. In an increasingly interconnected world, the recognition of mental health as a fundamental aspect of overall health is gaining momentum. The COVID-19 pandemic has further emphasized the importance of mental health as people around the world faced various challenges like isolation, anxiety, grief, and uncertainty. This seminar has been organized with an aim to provide preventive tips and effective ways to promote mental health awareness. Today we have with us very special guest, Professor P.K. Dalal sir. Sir has been former head Department of Psychiatry, King George's Medical University, Lucknow. Sir was currently working as a professor and head. Dr. Dalal has authored and co-authored several national and international publications and also working as a reviewer for reputed professional journals. Dr. Dalal is having an active association with different societies and academies around the world. Sir made his mark in the scientific community with the contributions and wide recognition from honorable subject experts around the world. Sir has received several awards for his contributions to the scientific community. Dr. Dalal's major research interest involves general psychiatry and drug de-addiction. So I would like to invite you, sir, for your special lecture today. I would like you all to give a round of applause to sir. Thank you for the good words. Dean Sahab, HOD Statistics, Madam Mishra, Hemant ji, and one of my dearest colleagues, Dr. Amresh. We are associated with, I do not know how many decades, maybe more than 3 decades. And before moving to UK, from there he moved to Canada. He was in Mumbai and we were associated since then. His Mansik Shakti is doing an excellent work, and we met somewhere in a program, and there it was envisaged that we will start some program in UP, and there we have started teachers training program, especially for the teachers who are the student whose students are generally the adolescents. So since then we are associated more, and we have been doing some programs online. I believe every month from 1st to 4th of every month we are having certain programs which is going online. So with that little introduction, what I have been assigned the task of
talking about the World Mental Health Day. Now, the World Mental Health Day began by the World Federation of Mental Health. It is a body which was formed in the year 1948, and it was headed by a psychiatrist from Canada only. And at that point of time, he proposed the foundation of World Federation of Mental Health. And since then, it is carrying out, and 150 countries are the members of this federation. And in the year 1992, they have started celebrating, they have started giving a, what you call a theme of every year, which started from the year 1994. And every year they gave a theme. And this month is being celebrated as World Mental Health Month. And this week is being celebrated as World Mental Health Week. And finally, it is culminating on 10th of October every year into the World Mental Health Day. And every year a theme is being allotted or thought about it. And world over today, people are arranging like this seminars, workshops, and all these things to spread awareness about mental health, why this is necessary, why it is required, and to do away with the stigma attached to this mental health. And in that league, this year's theme is mental health is a universal human right. And with that, there is a tagline that is our minds, our rights. So this is the tagline with this, and on which everybody is talking about. So why this is important? Because we all know human right, it starts from the day the child is born. That is to take care of his health, not only health, but also everything. Take care of his nutrition, take care of his clothing, and all these things. So since then, the rights, they start. And as we grow up in ages, then there are certain rights for schooling, there are certain rights for, say, having marriage, procreation, or work, and then aging into and old age, going into an old age. So during all these times, human right shows that one person should live with dignity throughout his life. So that dignity should be provided to mental health, to the person suffering with mental health condition is also very, very important. Because as a psychiatrist, what we see that when a person suffers with mental health condition, then the negligence starts. The family starts ignoring him or her, and they do not. If the child born is unfortunately suffering with intellectual disability, which was previously known as mental retardation, then they are not taken out. लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे बच्चे को मंद बुद्धि है, उसको बाहर घुमाने नहीं ले जाते, उसको कहीं कोई भी फंक्शन हो वहां नहीं ले जाते. तो यही से ही ये यूनिवर्सल राइट का हनन होना शुरुआत हो जाती है. और जब कोई मेंटल कंडीशन और दूसरी होती है, मान लीजिए कोई साइकोटिक डिसऑर्डर हुआ, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, या सीवियर डिप्रेशन, डिमेंशियाज, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं विच अकाउंट फॉर सीवियर मेंटल कंडीशन. और वो सीवियर मेंटल कंडीशन, उसका जो पॉइंट प्रेवलेंस है, दैट इज अराउंड 5%. तो उन लोगों का जो ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का जो हनन होता है,
ये बहुत ही ज्यादा होता है, जैसे कि उनकी मैरिजेस में बाधाएं आती हैं, उनके प्रोक्रिएशन में बाधाएं आती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में बहुत डिस्प्यूट्स होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, हम लोग एक एनजीओ के साथ एक प्रोग्राम रन करते हैं अपने डिपार्टमेंट में, जिसमें कि जो भी वॉन्डरिंग ल्यूनेटिक्स हैं, जानते हैं आप लोग, द पीपल हु सफर विद साइकोटिक डिसऑर्डर्स, और जिनको घरों ने डिसोन कर दिया, सोसाइटी ने डिसोन कर दिया, जो जिसको आम भाषा में लोग पागल कहते हैं, जो पागलों के माफिक सड़क पे घूमते रहते हैं, उन लोगों को एक पुलिस के विभाग के कुछ लोगों से मिल करके हम लोगों ने उन लोगों को पुलिस वाले ही उनको मैजिस्ट्रेट के पास ले जाते थे और वहां से ऑर्डर्स निकाल करके हमारे डिपार्टमेंट में उनको एडमिट कराते थे, जहाँ पे हम उनको वॉलेंटरीली सारी सर्विसेज देते थे, उनका इलाज करते थे, और ठीक हो जाने के बाद उन लोगों ने अपने पते बताए और उनके घर हम लोगों ने भेजा, नॉट ओनली इन उत्तर प्रदेश बट इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ दिस कंट्री एज वेल एज बाहर भी हम लोगों ने नेपाल वगैरह में भी मरीजों को भेजा। तो इसमें 2-3 हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, जिसमें कुछ जीआरपी वालों से बातचीत हुई, जो रेलवे पुलिस वाले हैं। उन्होंने ये कहा कि साहब, जो ये मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग होते हैं, इनको परिवार वाले लंबी जो ट्रेन होती है, जो एंड होती है, कहीं वहां पे बैठा देते कि वो वहां पे जाएगा या जाएगी वो शख्सियत, और उसको वहां पे उतार लिया जाएगा और उसके बाद जो भी कुछ करे। क्यों ऐसा करते हैं वो लोग? कि हमें अपनी प्रॉपर्टी में इसको ना हिस्सा देना पड़े। आप समझिए कि सोसाइटी कहाँ पे है इस समय, कहाँ जा रही है हमारी सोसाइटी। तो हम लोग मेंटल हेल्थ की इतनी बात करते हैं, तो व्हाट कैरेक्टर वी आर हैविंग। उन लोगों को, अपने भाई बहन माता पिता जो मेंटली इल हो गए, उनका टेक केयर ऑफ करने की जगह पे उनको वो ट्रेन में बैठा देते हैं, जस्ट इस वजह से कि हमें इनकी जिंदगी भर देखभाल करनी पड़ेगी, इनका इलाज करवाना पड़ेगा, इसमें पैसा खर्चा होगा, और इसके अलावा हमें प्रॉपर्टी में भी इनको शेयर देना पड़ेगा। तो ये है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के तहत जब ये मेंटल हॉस्पिटल्स को देखने का ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ हम लोगों का, और मेडिकल सेक्रेटरी वगैरह के साथ हम लोगों ने दौरा किया। स्पेशली आई वाज इन्वॉल्वड इन यूपी में जो 3 मेंटल हॉस्पिटल्स हैं, बनारस, आगरा और बरेली। तो वहां पे जब हम लोग गए तो उन लोगों की जो दुर्दशा देखी, वो वाकई में बहुत ही हिला देने वाली दुर्दशा थी वहां पे। और वहां पे एक बात ये पता चली कि साहब, जो लोग इनको ला करके भर्ती कराते हैं, वो भी मरीज को गलत नाम, गलत पता दे करके भर्ती कराते। उन्होंने ये कहा कि साहब, जैसे मरीज ठीक हो गया, ये एनएचआरसी के ऑब्जर्वेशन में भी है कि मरीज ठीक हो गया और ठीक तरीके से रह रहा है, उसकी छुट्टी हो जानी चाहिए। उसकी छुट्टी सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाती उस मेंटल हॉस्पिटल से कि ये कहाँ जाए, इसको कहाँ भेजे। वो लोग अपने आदमी भेजते हैं इनके बताए हुए पते पर, और उस पते पर जाते हैं तो ना तो वो व्यक्ति मिलता है जिसने भर्ती कराया, ना उसका नाम मिलता है, ना उसका पता मिलता है, सब आइडेंटिटी इज लॉस्ट। सो यू सी, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। और यहीं पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन। एक बार आप लोगों ने, हो सकता है बहुत पहले की बात है, रांची मेंटल हॉस्पिटल से कुछ मानसिक रोगी वहां पे फाटक खुला हुआ मिला या चहरदीवारी, वहां पे कूद करके वो बाहर निकल गए, और खोजबीन हुआ, जो भी कुछ हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि कुछ समय के बाद वो सब के सब खुद ही वापस आ गए। व्हाई? बिकॉज सोसाइटी डिड नॉट टेक केयर ऑफ इट। ना उनके पेरेंट्स, ना मतलब घर वाले, ना सोसाइटी, किसी ने भी उनकी जिम्मेदारी नहीं लिया, और अंततोगत्वा उनको वापस मेंटल हॉस्पिटल में आना पड़ा। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, साहब, हम तो यहीं पर ही ठीक है। तो ये सब है ह्यूमन राइट्स के का वायलेशन। और इसी के लिए अब ये जो थीम दिया गया है,
कि सब लोगों को ये पता चले और वो डिमांड करें अपने स्टेट से दैट मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल राइट, कि हमें भी जीने का हक है विद डिग्निटी, हमें भी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो भी हमारे इलाज से रिलेटेड है या जो भी एक्सेसिबल है, जो भी चीजें हैं वो सब चीजें हमें मुहैया कराई जानी चाहिए बाय द स्टेट। तो ये इस तरीके की है और इसके साथ साथ अवेयरनेस फैले, जागरूकता फैले कि भाई ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं और इसका किस तरीके से वायलेशन हो रहा है। मेंटली जो चैलेंज पीपल हैं, जो जो मेंटली इल हैं, जो मेंटली सिक हैं, उन लोगों में किस तरीके से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है और उसके लिए स्टेट, सोसाइटी और फैमिली मेंबर्स क्या करें कि इस तरीके का कोई वायलेशन न हो। तो ये हम लोगों को ग्रास रूट लेवल से शुरू करने की जरूरत है कि इसमें हम किस तरीके से आगे बढ़ें। अब बात ये आती है कि मेंटल हेल्थ का जो मतलब एक्सटेंट है, ये इस प्रॉब्लम की ये कितनी बड़ी है, ये समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। और उसमें एक जो और भी है, जो एक स्टिग्मा है या जो टैबू अटैच्ड है इसके साथ। जैसे कि हमें दांत में दर्द होता है तो हम एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं, हमें सांस की प्रॉब्लम होती है तो हम एक फिजिशियन के पास जाते हैं, लेकिन हमें डिप्रेशन या एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है तो हम नहीं जाना चाहते। क्यों? हम साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो दे आर सिनोनिमस विद पागलों के डॉक्टर। हमेशा से उनको यही सॉर्ट ऑफ वो दिया गया है और ये सब टैबू की ही वजह से है कि ये लोग पागलों के डॉक्टर हैं। क्योंकि बहुत पहले जमाने में जब कोई इलाज नहीं था, 1970 से इलाज शुरुआत हुई है दवाओं से, जिसने कि बिल्कुल सिनेरियो चेंज कर दिया है मेंटल हेल्थ कंडीशंस के ट्रीटमेंट का। तो उससे पहले उन लोगों को वही होता था, जैसे कि टीबी के इलाज से पहले टीबी के मरीजों को सैनिटोरियम्स में भेज दिया जाता था कि अच्छी जगह पे आप जाइए, अच्छा भोजन करिए, अच्छे वातावरण में रहिए, खुली हवा में रहिए तो टीबी ठीक हो जाएगी। उसी तरीके से उन लोगों को भी कहीं बांध करके डाल दिया जाता था, कहीं कुछ कर दिया जाता था, उन लोगों को आउटकास्ट कर दिया जाता था सोसाइटी से। और ब्लैक मैजिक एंड ऑल दीज थिंग्स जो कि अभी भी प्रचलित है हमारे देश में, खासकर दुआ भभूत और ओझा सोखा एंड ऑल दीज थिंग्स, दे आर स्टिल वेरी वेरी प्रेवलेंट हमारे सोसाइटी में, अभी भी बहुत प्रेवलेंट है। तो वो सब चीजें अभी भी हैं जिसके बारे में सब लोगों में जागरूकता फैल रही है और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं अब साइकियाट्रिस्ट के पास। मैं ये बता दूं कि जब मैंने साइकियाट्री शुरू करी थी इन द ईयर 1982 में, तो उस समय हमारी ओपीडी में 20-30 मरीज इस तरीके से आते थे पर डे। आज की डेट में करीब 500 मरीज आते हैं, सारी विधाओं को मिला करके, चाइल्ड साइकियाट्री, एडिक्शन साइकियाट्री और एडल्ट साइकियाट्री, ये सारे विंग्स हमारे चलते हैं। तो कुल मिला करके अराउंड 500 पेशेंट्स पर डे, और इस तरीके की चीज, पूरा डेटा इस तरीके का है हमारा। लेकिन दुख की बात यह है कि साइकियाट्रिस्ट हमारे कंट्री में बहुत कम है अभी। वी आर अराउंड 10,000 पीपल, 10,000 साइकियाट्रिस्ट इन द कंट्री, और उससे बहुत कम है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और उससे भी बहुत कम है साइकियाट्रिक सोशल वर्कर्स एंड साइकियाट्रिक नर्सेस। ये पैरा जो प्रोफेशनल्स हैं, इनकी भी बहुत जरूरत पड़ती है काउंसलिंग के लिए, साइकोथेरेपी के लिए, बिहेवियर थेरेपी के लिए, बिसाइड्स ट्रीटमेंट विद मेडिसिन। तो ये सारा जो डेवलपमेंट है ये धीरे धीरे हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। देखिए मेडिकल कॉलेजेस बहुत बढ़ रहे हैं और अब हर मेडिकल कॉलेज में साइकियाट्री डिपार्टमेंट को अब होना अनिवार्य कर दिया गया है। तो धीरे धीरे भी एक्सपेक्ट कि एमडी की सीटें बढ़ेंगी, धीरे धीरे साइकियाट्रिस्ट बढ़ेंगे। और जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारा डिपार्टमेंट है, वहाँ पे हम लोगों को सरकार ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है जिसमें कि हम एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइकियाट्रिक सोशल वर्क और साइकियाट्रिक नर्सिंग का कोर्स भी रन करते हैं। इस तरीके से हिंदुस्तान में काफी सारी सेंटर्स हैं। तो
So जो पैरा प्रोफेशनल्स हैं, they are also coming up. जो एक्सटेंट ऑफ इलनेस के बारे में, मेंटल कंडीशंस के बारे में मैं बात करना चाह रहा था, वो ये है कि WHO कहता है दैट 1 in 8 का मतलब आप समझ रहे हैं कि अराउंड 12.5% हमारी सोसाइटी में, दुनिया भर में लोग ऐसे हैं जो कि who are suffering with some of the other mental health condition who require help. हेल्प का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ डॉक्टर के पास ही जाएं, आप अपने फिजिशियन के पास भी जा सकते हैं, आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास भी जा सकते हैं। और ये जो एडोलेसेंट ग्रुप है 10 to 19 इयर्स के ग्रुप में, दिस फर्दर इंक्रीजेस एंड इट इज 1 in 7 दे सफर फ्रॉम वन और द अदर मेंटल कंडीशंस। अब ये जो मेंटल कंडीशन है, इनमें आप ये समझ लीजिए कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन दे सफर विद एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ये दो बीमारियां ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा फैली हुई हैं across the globe, across every strata of people, and they comprise of 60% of this of the people who suffer with mental health conditions. तो इस चीज को सबसे ज्यादा लोगों ने रिकॉग्नाइज किया कोविड के बाद। कोविड से पहले हम लोग बोलते थे, कहते थे, इसी तरीके की सभाओं में कहते थे और वो, लेकिन कोविड ने सबको दिखा दिया और मतलब एक तरीके से प्रत्यक्ष प्रमाण करवा दिया कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर भी कुछ होता है, मेंटल हेल्थ कंडीशंस भी कुछ होती हैं जब लोग अकेले रहने लगे और जब लोगों के नियर एंड डियर्स गुजरने लग गए और जब वो उनको ये हुआ, ऐसी कंडीशन भी थी शुरू में कि आप उनका दाह संस्कार भी नहीं करना अलाउड था। सो ऑल दोस थिंग्स से जब लोग बाग गुजरे तो उन लोगों को किस तरीके की प्रॉब्लम्स हुई। अब वही सब चीजें अब आगे भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं, जैसे कि, और जैसा मैंने बताया कि जो उस तरीके की जो सिवियर मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, दे आर ओनली अराउंड 5%। बाकी सारी जो बीमारियां हैं उसमें मेजर चंक किसका है? इसके अलावा बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं, एडिक्शन डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल रिटार्डेशन है, कुछ चाइल्डहुड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जैसे ADHD हो गया या ऑपोजिशनल डिफारेंस डिसऑर्डर हो गया या कंडक्ट डिसऑर्डर हो गया। बहुत सारी इस तरीके की बीमारियां हैं जो बच्चों में मिलती हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा युवावस्था में अब आजकल जो हम लोग स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, स्ट्रेस इंड्यूस्ड प्रॉब्लम, आजकल जो भी बच्चा मेरे पास आता है या उसके पेरेंट्स ये कहते हैं कि साहब ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है या गुस्सा बहुत इसको आता है या इसको बर्दाश्त करने की इसमें क्षमता नहीं है। इसके अलावा यंगस्टर्स में आजकल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बहुत देखने को हम लोग को मिल रही हैं, एंड स्पेशली जो ये यंगस्टर्स में द सो कॉल्ड रिलेशनशिप होती है और उसके बाद जब ब्रेकअप होता है तो उसको फिर वो नहीं संभाल पाते, एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। इसके अलावा जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो चीजें, जैसे हम लोगों ने कोटा के डेथ्स को नाम दिया कोटा सिंड्रोम। जो ये कोटा सिंड्रोम है, आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा पेपर्स में कि कुछ ही दिनों में करीब 28 बच्चों ने सुसाइड कर लिया और उसके बाद वहां की जो गवर्नमेंट है उन लोगों ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने और वहां के लोगों ने मिल करके फिर कुछ रेक्टिफाइंग मेजर्स लिए। और उसका एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं दैट yesterday only I saw a person, उन्होंने ये उनके पेरेंट्स लेकर के आए और उन्होंने ये बताया कि सर अभी हमें 2 दिन पहले ये मैसेज आया वहां के कोचिंग इंस्टीट्यूट से कि आपके बच्चे में कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, आप आइए उनसे मिलिए और देखिए क्या बात। वो गए और उसको लेकर के आए और उसके बाद अगले ही दिन उसको मेरे पास लाए। तो वो पर्सन was suffering from a definite mental condition। तो इस तरीके की चीजें ग्रेजुअली अगर लोग ध्यान देंगे, स्पेशली टीचर्स अगर ध्यान देंगे इन सब चीजों पे,
तो उनको पता चलेगा कि क्या दिक्कतें हैं। अच्छे स्वास्थ्य का, अच्छे मेंटल हेल्थ कंडीशन, गुड मेंटल हेल्थ कंडीशन, जैसे मैडम ने कहा कि टिप्स के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो एक टिप जो हमारे गुरु ने हमें सिखाया था वो ये है कि अगर आप सवेरे उठे और आपको काम पे जाने का मन हो रहा है तो इसका मतलब आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है। अगर किसी भी वजह से आपको काम पे जाने का मन नहीं हो उस दिन, तो आपको अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्यों हमें मन नहीं हो रहा है आज जाने, व्हाट इज द प्रॉब्लम। और दूसरी एक जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि जैसे जो लोग सीवियर फिजिकल इलनेसेस से जो लोग पीड़ित है, सीवियर क्रॉनिक फिजिकल इलनेस, जैसे मान लीजिए किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, किसी को लिवर की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को कैंसर है, तो ऐसे लोगों में ये देखा गया है कि अराउंड 38% ऑफ देम दे सफर विद वन और द अदर मेंटल कंडीशन। ठीक है। इसके अलावा कुछ डेटा ये भी कहते हैं कि जैसे 2 to 3 times मोर मेंटल हेल्थ कंडीशन देखे गए हैं इन लैमिक कंट्रीज। लैमिक कंट्रीज जानते हैं आप लोग, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, इन लोगों को। सो पॉवर्टी या जॉब के लिए स्ट्रगल करना या जॉब नहीं मिलना या इस तरीके की चीजें जो हैं उनमें भी 2 to 3 times मोर देखा जाता है। और ये भी डेटा है कि 60% ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड दे आर वर्किंग। तो उन 60% लोगों में जो आर वर्किंग, उनमें करीब 15% ऑफ देम दे सफर विद वन और द अदर मेंटल कंडीशंस। क्यों? क्योंकि जॉब का प्रेशर है, क्यों? क्योंकि वर्किंग कंडीशंस अच्छे नहीं है, मन के मुताबिक काम नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके की चीजें, जहां पे काम करते हैं वहां पे सुविधाएं नहीं है, तो इस तरीके की चीजों की वजह से मेंटल कंडीशंस उन लोगों की बढ़ जाती हैं आम से। ठीक है। और जो मैं कोटा के बारे में बात कर रहा था, वहां से सुइसाइड के बारे में बातें समझ आती है। मैडम टाइम हो जाएगा तो जरा बता दीजिएगा मुझे। नहीं, बस आप बता दीजिएगा। नहीं, साइकियाट्री तो कब क्या, साइकियाट्री 1 घंटे में तो बताई नहीं जा सकती, आधे घंटे में भी नहीं बताई जा सकती, लेकिन ओके, हाँ, मैं शायद इन 5 minutes आई विल बी ट्राइंग टू वाइंड इट अप। सो जो चीज जानने वाली है वो ये है कि हिंदुस्तान में सुसाइड का जो रेट है वो 12.7 है पर लाख पॉपुलेशन, जो कि वर्ल्ड का जो डेटा है वो 11.4 है, तो उससे थोड़ा ज्यादा है। कोविड से पहले ये डेटा कम था, कोविड के बाद 1% वर्ल्ड ओवर जंप कर गया है सुसाइड रेट। ठीक है। और जो दूसरा डेटा है वो ये कहता है कि जो लोग माइग्रेट कर जाते हैं, जो लोग रिफ्यूजीज हो जाते हैं, जो लोग वॉर कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहते हैं, इन लोगों में अराउंड 5 times ज्यादा मेंटल हेल्थ कंडीशंस देखी जाती हैं। तो अलग अलग चीजों में अलग अलग किस्म की मेंटल हेल्थ कंडीशंस देखी जाती हैं। जो एंजाइटी और डिप्रेशन की बात मैं कह रहा था, ये फीमेल्स में ट्वाइस मोर कॉमन है एज कंपेयर टू मेल्स, because of certain hormonal conditions, because of certain hormonal changes which they suffer with, उसकी वजह से होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मेनार्की जब से शुरू होती है, प्री मेंस्ट्रुअल कंडीशंस होती हैं, फिर उसके बाद चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है और मेनोपॉज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दीज आर आइडेंटिफाइड mental health conditions जिसकी वजह से females are they suffer twice as compared to male in anxiety and depressive disorders only, that is the data। तो ये सब conditions इस तरीके की होती हैं। अब इसके लिए किया क्या जाए, जैसे कि कोटा में लोगों ने क्या किया है, अब थोड़ा सा उसमें सुधार करने का प्रयास ये कर रहे हैं कि जो फैंस हैं जिससे लोग लटक करके सुसाइड कर रहे हैं, उसमें स्प्रिंग लगाया गया है या लगाया जा रहा है। अब उसमें भी लोगों का ये कहना है कि आप एक चीज कम करेंगे तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी। आप लोगों को पता है कि जैसे लखनऊ के जो ब्रिजेस हैं, सारे ब्रिजेस, इनके ऊपर अब
लंबे लंबे वो बैरियर्स लगा दिए। इससे पहले क्या होता था कि जब भी रिजल्ट निकलता था तो ज्यादातर जिन लोगों का नहीं ठीक हुआ रिजल्ट, या जिन लोगों का ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया, वो जंप कर जाते। इस चीज को रोकने के लिए ये बैरियर लगाए गए। हालांकि अभी भी जंपिंग से सुसाइड होता है लेकिन बहुत कम होता है। जनरली इट इज विद पेस्टिसाइड्स या विथ हैंगिंग, और कुछ आजकल गन शॉट से जो हो रहा है वेस्ट के अकिन, वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए अब जैसे वहां पे इस तरीके के प्रोविजंस किए गए हैं, प्लस अब आजकल हर स्कूल में या हर कोचिंग सेंटर में ये बात किया जा रहा है कि एक साइकोलॉजिस्ट हो या एक काउंसलर हो वहां पे, जिसको कि ये पता हो कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, व्हाट आर द अर्ली साइंस। अब अर्ली साइंस की बात करें तो वो ये है कि भाई अगर बच्चा आपको कई दिनों से कोचिंग में या कॉलेज में नहीं आ रहा है, या उसको देखते हैं कि वो आता है तो अलग थलग बैठा रहता है, या वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है बच्चों के साथ, या जो कॉमन एक्टिविटीज हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, उनके पेरेंट्स से बात करें तो वो ये कहते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब आजकल ये थोड़ा सा कमरे में भी अलग ही रहता है, रात में सोता नहीं है ठीक से, खाना भी ठीक से नहीं खा रहा है, कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, कुछ चिड़चिड़ाहट आ जाती है। तो दीज आर द अर्ली साइंस। जबकि आप लोगों को सचेत हो जाना चाहिए और परसू करना चाहिए उनके पेरेंट्स को। वो छूटते ही कई बार लोग अज्ञानता की वजह से ये कहते हैं कि अरे डॉक्टर साहब ये पागल थोड़ी है कि आप इसको वहां दिखाने को कह रहे हैं। तो उनको प्रिपेयर करना जरूरी है कि आप एक बार इस तरीके के मेंटल हेल्थ कंडीशंस होते हैं, आप एक बार जाइए, और जब आप जाएंगे मिलेंगे तो आपको पता चलेगा। आप उनके पास नहीं जाना चाहते, आपके जो फैमिली फिजिशियन है उनके पास चले जाइए, फिर फैमिली फिजिशियन उनको तैयार करके साइकियाट्रिस्ट के पास भेजते हैं। तो इस तरीके का ये जो टैबू है, ये जो स्टिग्मा है, इसकी वजह से भी बहुत लंबे लंबे समय तक मरीज सफर करते रहते, और उनके घर वाले भी कई बार, हम लोग तो रोज ही देखते हैं कि इलाज कराया कुछ महीने और उसके बाद दवाई बंद कर दी, समझाने के बाद भी फिर वो रिलैक्स कर जाता है, फिर लेकर के चले आते हैं। तो इस तरीके की चीजें बहुत होती रहती है। तो ये सब अब धीरे धीरे जागरूकता फैल रही है, धीरे धीरे लोग बाग बेहतर हो रहे हैं। और जैसे मैंने तो ये अनुभव किया है कि आपने एक गांव के एक मरीज को ठीक कर दिया तो उस गांव में जितने भी लोग हैं सब चले आते हैं आपके पास कि डॉक्टर साहब फलाने को आपने ठीक किया था और हमको भी इसी तरीके की कुछ दिक्कत है या कुछ फलानी दिक्कत है, आप प्लीज मदद करिए। तो अवेयरनेस बाय वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा मैसेज जाता है जो कि फैलता है। तो ये सब चीजें हैं। दूसरा एक कंडीशन आजकल बहुत ज्यादा जो देखने को मिल रहा है, दैट इज बिहेवियरल एडिक्शन इन द फॉर्म ऑफ जिसको आप कहें इंटरनेट एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, या जो भी कुछ एडिक्शन। इसके तो हम लोग रोज कई बच्चों को देखते हैं इस तरीके। एक्सट्रीम्स में मैं आपको एक दो एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। एक बच्चा आया और उसने तो ये कहा अपने फादर के सामने मेरे से, ये कहा डॉक्टर साहब आप कुछ कर लीजिए, सर आप कुछ कर लीजिए, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, आप मुझे मारिए पीटिए। उनके फादर ने कहा कि सर हमने हर तरीके का दंड दिया, इसको कमरे में बंद कर दिया, इसने कुछ नहीं कहा, he did not oppose। लेकिन उसने कुछ ना कुछ खाया ना कुछ पिया, वो वैसे ही पड़ा रहा जब तक कि उसको मोबाइल दिलाना दिया। अभी एक और एग्जांपल जिसमें एक साहब लेकर के आए अपने बेटे को, ग्रेजुएट है वो, और उसने इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर भी एक डिसऑर्डर है जो कि अब आजकल WHO ने भी रिकॉग्नाइज किया है। इसमें लाखों रुपए उसने खर्च कर डाले इन गेमिंग डिसऑर्डर में। तो इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं, और जिसकी वजह से ये जो एक मोबाइल फोन है, ये हर एक को एक जो ये खिलौना पकड़ा दिया है हमारी सोसाइटी ने, और इसमें हर दिन कुछ ना कुछ चीजें ऐड करते रहते हैं। हर दिन कोई कभी नया गेम डाल दिया, कभी कोई ऐसी इस तरीके की चीज डाल दी, और इसको एक प्राइज्ड पोजीशन मानता है वो बच्चा। तो जब मेरे पास आता है तो मैं पूछता हूं उनसे कि तुम करते क्या हो ये बता।
कितनी देर तुम इसमें से पढ़ते हो, वाकई में इसका यूटिलाइज करते हो, और कितनी देर के लिए तुम इसको दूसरे कामों में लगाते हो। इसमें भी काफी स्टडीज हो चुकी हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि हार्डली 2% ऑफ द टाइम दे यूटिलाइज इन देयर कंस्ट्रक्टिव वर्क, जैसे पढ़ाई करना है या किसी से कुछ नोट्स का आदान प्रदान करना है या सीखना है। बाकी सारा टाइम वो बाकी और चीजों में गुजारते हैं जिसका कोई मतलब नहीं। तो वो उन लोगों से कहते हैं तो मुंडी तो हिलाते हैं सामने कि हाँ साहब ये तो गड़बड़ है, लेकिन घर जाकर के फिर वही कहानी। तो ये एडिक्शन है एक तरीके से, जैसे शराब का नशा होता है या ओपियोइड्स का नशा होता है या कैनबिस का नशा होता है, वैसे इन चीजों का भी नशा होता है। और हम लोग क्लिनिक भी चलाते हैं इसके लिए। अलग से हम लोगों ने क्लिनिक हम लोग चलाते हैं जिसमें कि जिससे कि बच्चे उसमें बाकी और मेंटल पेशेंट्स के हिसाब से ना आए, वो खाली अपनी इसी प्रॉब्लम को लेकर के वो आकर के हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं और उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। तो इस तरीके की भी सुविधाएं अवेलेबल हैं। सो कंक्लूडिंग माय टॉक, बेसिकली हर साल कोई ना कोई इस तरीके की चीज आती है, और इसको सेलिब्रेट आप कैसे करते हैं? सेलिब्रेट करने का जिनके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो ये है कि सबसे पहले अपने आप को देखिए, अपना आकलन करिए कि क्या आप मेंटली स्वस्थ हैं। अगर नहीं है तो स्वस्थता की जो निशानियां, जो कुछ चीजें हैं वो जरूर करें, जैसे समय से भोजन करना, समय से सोना। 8 घंटे की नींद अनिवार्य किसी भी एडल्ट इंसान के लिए। और बाकी हम लोग ये कहते हैं कि सुबेरे उठ करके 1 घंटा वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये चारों चीजें या इसमें से 2 चीज या 3 चीज, जो भी कुछ आपको पसंद हो वो आप जरूर करिए। सनलाइट, आजकल का फैशन है जिम जाने। किसी भी बच्चे से पूछो या उनके घर वालों से, सर ये जिम जाता है। जिम इज व्हाट? एक आर्टिफिशियल लाइट में इसी तरीके में एक एसी लगा हुआ है, आप कुछ अपने एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं, वो भी जरूरी है, वो फिजिकल एक्सरसाइज है, वो फिजिकल के लिए जरूरी है। लेकिन वॉकिंग, स्ट्रेचिंग और जो योगा प्राणायाम है, इससे फिजिकल के साथ साथ मेंटल एक्सरसाइज भी होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप ओपन एनवायरनमेंट में करते हैं विद लॉट्स ऑफ ग्रीनरी, लॉट्स ऑफ फ्रेश एयर एंड ऑल दीज थिंग्स, तो उसका एक बहुत अच्छा प्रभाव। तो इस चीज को डेली करने का प्रयास करें और समय से भोजन करें। और दूसरी बात, ये जो एक और बहुत जरूरी चीज है वो है बी अ गुड लिसनर। साइकियाट्रिस्ट को तो हम लोगों को तो ट्रेनिंग ही दी जाती है लिसन करने की, लेकिन अगर आप एक आजकल के युवाओं में दिक्कत ये है कि जैसे ही आपने कुछ किया, कुछ पूछा, बिना सोचे समझे तू तड़ाक जवाब देना शुरू कर देते, और अगला भी बैठा हुआ है वो भी वैसे ही बोलने लग जाता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि वो जो भी बच्चा या आपका कलीग, आपका सीनियर, आपका जूनियर जो कुछ बोल रहा है उसको पहले बोलने का पूरा मौका दीजिए, और आप 2 मिनट के बाद जवाब दीजिए। तो 1-2 मिनट जो आप रुक करके जवाब देंगे, तब आप उसके उन विचारों को समझ करके तब जवाब देंगे, तो आपका जो ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स है वो नहीं होगा, बल्कि आपका जो रेस्पॉन्स होगा वो जो ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स होता है वो इमोशन लेडन होता है। दैट इज एन इमोशनल रेस्पॉन्स। उसमें आप चिल्लाने लग जाते हो, उसमें आप चीजें फेंकने लग जाते हो एंड ऑल दिस थिंग्स। वो ना करके अगर आप 1-2 मिनट के लिए रुक जाएं और उन्होंने क्या कहा उसको समझें, तो फिर आपका रेस्पॉन्स बेटर होगा। और वो सेरिब्रल, तो इन बातों पे अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप लोगों बेहतर मानसिक स्वास्थ्य रहेगा। एंड विद दैट आई विश यू ऑल फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। Thank you so much, sir, for such a versatile talk. I would like to congratulate you for shedding light on. So, sir, you beautifully shed light on various aspects of mental health.
And I think Sadhguru has very rightly said that you cannot really separate physical health from mental health. Because health is as a whole. So I think that is what you also laid emphasis on, sir. And I think we should all not lose hope and be hopeful, because even the darkest night will end and the sun will rise again. So we should all be hopeful. And with this positivity, today we are also having a book launch. We have with us Dr. Amresh Srivastav, sir. Sir has joined online and sir has been very keenly listening to all our lectures and talks. So sir is a professor emeritus of psychiatry in Western University, London, Ontario, Canada. So sir has written a book. It's a course book for student suicide prevention. So on this occasion of World Mental Health Day, we are also releasing this book. And I request the dignitaries on the dais to please release this book on the occasion. And I request you all to please give a round of applause to him. Thank you. Much appreciated. Thank you. Sir, we invite you on the. Okay. Am I audible? आवाज आ रही है? Yes, sir. बिल्कुल आ रही है. Okay. आदरणीय सिद्दीकी साहब, प्रोफेसर मिश्रा जी, हमारे ट्रस्ट के श्री दीक्षित जी और लखनऊ विश्वविद्यालय के सभी गणमान्य व्यक्ति, छात्रों और सभागृह में उपस्थित हमारे सभी सहयोगियों से, ये बहुत ही सम्मान का विषय है कि आपने हमें समय दिया है, मौका दिया है इस विषय के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए। पहले तो मेरी पुस्तक का अनावरण करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आते हैं, थोड़ी देर में मैं 2 बिंदुओं पर बात करना चाहता हूं। पहला, जो आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का विषय चल रहा है, और दूसरा मानसिक शक्ति कार्यक्रम जो हमने लखनऊ में शुरू किया, जिस कार्यक्रम ने लखनऊ की धरती पर जन्म लिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 4 महीने में जो कुछ मैं देख रहा हूं कि ये फलता फूलता देश भर में जाता नजर आ रहा है। आप सबको आज के दिन के संकल्प के लिए बधाइयां, शुभकामनाएं। मेरे मित्र दलाल साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से आपके सामने रखा कि मानसिक स्वास्थ्य और मानव अधिकार का क्या संबंध है। मैं इस विषय को थोड़ा दूसरी तरफ मोड़ना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हम सिर्फ उन 10% लोगों की बातें नहीं करना चाहते जो मानसिक रूप से बीमार, परेशान या रोगी घोषित कर दिए गए। मैं उन 90% या हर एक व्यक्ति के जीवन के बारे में बात करना चाहता हूं जो इस दुनिया में आज के तनाव भरी परिस्थिति में रोज के तनाव भरे वातावरण से झेल रहे हैं और कठिनाइयों के साथ जी रहे हैं। ये बात स्पष्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य हमारा अधिकार है और ये एक नई परिभाषा सामने आई है। इसका अर्थ यह भी है कि अभी तक हमारे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारी तो है, सरकारों की भी है, लेकिन
हर उस व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। मसलन किसी से कैसे बात करना, किसी के सामने ऐसी कोई क्रिया करना या ऐसा कोई काम करना जिससे वो डर जाए या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए या उसकी सामाजिक उसकी मानसिक उसका मानसिक तनाव बढ़ जाए, ये परिभाषा हमें इस हद तक सोचने पर भी मजबूर करती है कि मानसिक स्वास्थ्य की जो जोखिम है, चाहे वो गरीबी हो, अलगाव हो या कोई मेडिकल बीमारी का होना हो, हर वो परिस्थिति, चाहे वो कोई नियम है, कानून है, घटना है, बाहर की बातें हैं, ऐसी हर एक घटना जो मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है, वह मानव अधिकार के हनन के लिए भी जिम्मेदार पाई जानी चाहिए। यहां से शुरू होता है मानसिक स्वास्थ्य का एक नया अध्याय, जो हमें ये भी बताता है कि लोगों के आपसी संबंध क्या है। आखिर मानसिक स्वास्थ्य की गड़बड़ी होती है, खराब होती है तो कहां से होती है? दलाल साहब ने बहुत से उदाहरण दिए, बताया कि सुसाइड क्या है, इंटरनेट एडिक्शन क्या है, बच्चे किस तरह से जिद करते हैं, कैसे परेशानियां सामने आती हैं। मेरी 2-3 बातों पर मैं चाहूंगा ध्यान दें। पहला है कि मानसिक स्वास्थ्य की जड़ें मातृत्व में बसी हुई हैं। हमारा मानसिक स्वास्थ्य उस समय से बनता, फलता, फूलता है जब से हमारे जन्म की संभावना सामने आती। माता का स्वास्थ्य, प्रसव का स्वास्थ्य, जन्म के बाद बच्चों का विकास, सामाजिक घटनाएं, सामाजिक परेशानियां, प्रताड़ना, अब्यूज, डिस्क्रिमिनेशन, आइसोलेशन, वायलेंस, अल्कोहलिज्म, एडिक्शन, ये अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो न केवल समाज में हैं बल्कि ये परिवारों से शुरू होती। इन सभी घटनाओं का नकारात्मक प्रभाव मानव मस्तिष्क पर पड़ता है और हम ये याद रखें कि हमारे मन का और हमारे आत्मा का स्रोत, केंद्र बिंदु हमारा मस्तिष्क है। अगर मेरा ख्याल है कि जो पुस्तक के बारे में मुझे कहना था मैंने कहा, और मैं अपनी बात को पुनः अगले अवसर के बाद कंटिन्यू करूंगा। यस डॉक्टर मिश्रा, यू कैन कंटिन्यू प्लीज। Thank you so much, sir. Since Dalal sir has to leave for another commitment, so we will be ending up this. Before Dean Faculty of Science, sir, with us, sir has always been super supportive. So I invite you, sir, to say a few words. Respected Dr. Dalal Saab, Madam Sheila ji, Masood Saab, all the guests here, my colleagues from the statistics department, researchers and students. Such a wonderful topic we are going to deliberate today. I thank especially to Professor Sheila Mishra ji for inviting me. I was just recollecting an old song in which one of the lines says, "इस शहर में हर शख्स परेशान सा है, क्यों?" I think that summarizes the situation. It can be anyone, all of us sitting on the dais, or our students sitting there. Somewhere the situation always falls in a manner where we forget the natural instinct that we all have, especially in terms of happiness. When we talk of mental health, I think there lies the conflict. We, as a human soul, all of us want to be happy.
but barely few of us. In fact, we have lost the sense of humor also. And that is all that suggests that what kind of situation is prevailing, especially the day is important for our students. I represent the faculty in which about 7,000 students, researchers, and UG and PG students are there. Dalal Sahab has very rightly said that new dimensions to various kinds of issues like internet and others that has made the exposure of the world to us at the same time. We spend a lot of our quality time in spending on the internet without realizing that our human relations and human interactions have come to an end. बहुत जरूरी है हम सबके लिए कि कुछ समय अपने लिए भी निकालें। ज्यादातर बच्चे जो यहाँ बैठे हैं उनको ये, मैं जिस भी क्लास में पढ़ाता हूँ, मुझे 37 साल हो गए, इससे मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का सबसे पुराना टीचर हूँ, सीनियर भी हूँ सबसे। तो मुझको ये एक एक्सपीरियंस से बात कहनी पड़ रही है कि मैं हर क्लास में जाके पहले दिन ये कहता हूँ कि मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ। उसका कारण यह है कि मैं आपको किसी भी स्ट्रेस में नहीं डालना चाहता। यदि इच्छा हो तो पढ़िए और यदि ना इच्छा हो तो मौज करिए। क्यों? क्योंकि अगर हम स्ट्रेस देके आपको पढ़ाएंगे तो आप पढ़ना नहीं चाहते, आप जमाई लेंगे, आप बातें करेंगे, उससे अच्छा है कि आप बाहर चले जाओ, आराम से वो अल्लाह करो। यही चीजें याद रह जाती हैं, पढ़ाई लिखाई रखी रहता। फिर भी एक दिशा तो चाहिए आगे के जीवन के लिए। कोई जरूरी नहीं कि आप आईएएस बन जाइए, पीसीएस बन जाइए, आईएफएस बन ना। अगर आप अच्छे सिंगर हैं, आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप अच्छे प्लेयर हैं, आई थिंक the less said the better. You actually live your life with a passion. I never wanted to become a teacher. I never studied. But as the luck would have it, I taught at IIT Bombay as a permanent faculty, then did my postdoc from Oxford University, now here for the last 37 years. And never ever I was under stress that I have to study. So I think this is how we should take our life. It's so interesting thing. मैं 62 साल का हो जाऊंगा दिसंबर में और मुझे लगता है कि अरे कितना समय रह गया बचाए तो से जिन्हें कितनी चीजें करनी है। कुछ भगवान की दया रही, मैं साथ बहुत सारे 20-25 देशों में घूमा हुआ रिसर्च के माध्यम से, और मुझे लगता है क्या शानदार पृथ्वी है। आप जिस देश में चले जाइए, yesterday a couple of days ago when this war started in Israel, and then the kind of stresses our Indian students and other natives, the people are being killed, and it was such an awful thing. Imagine what kind of world we are living in, for no issues, practically no substantial issue. So we live in a world where conflicts are there, interpersonal conflicts are there. I'm not the expert on it. Dalal Sahab is and Amresh Sahab is. I congratulate you, Amresh Srivastava Sahab in Ontario for having such a wonderful book published. And I think this should be a very bottom line for our students studying in Kota, where 28 of them have passed away because of the stresses they had. This kind of book is going to make a difference. So with that, I finish as Dalal Sahab is to leave. Thank you very much for giving me this. Thank you so much, sir. So on this happy note, we end the inaugural session of today's seminar, as Dalal sir has some other commitments, but we will be continuing with the seminar and the technical sessions.
Okay, thank you. We are continuing this session. Harsh? Harsh? Thank you. What's it? Students, please keep sitting. Huh? We are continuing the program. Technical session is still on. So we have with us Dr. Shivendra Dwivedi, who will be taking up the first lecture, the first technical session. A brief of anesthesia and president of the Chiefs of Department of Committee for over 20 years at a hospital in Montreal. He is presently in charge of teaching medical students and residents and works as a senior anesthesiologist at the same institution. He graduated from McGill University with MDCM degree in 1982, and he finished his anesthesia residency at the Royal Victoria Hospital in 1987. He is also a fellow of the Royal College of Physicians and Surgeon of Canada since 1987. He has served as a convener of the Montreal chapter prior to his induction as a member of the National Executive. Most recently, Dr. Dwivedi received the Dr. Albert Costa Award for Distinguished Medical Service to Santa Cabrini Hospital in 2020. So we are starting with Sir's deliberation. I request you all to please give a round of applause to Sir. I would like to welcome all of you to the World Mental Health Day celebration in our Lucknow University. So really a huge thank you to Professor Shiraz and the teams for engaging people, Professor Amritsar Lakman and Ramsar Sekman, and our foundations team that came initiative to make this event. I can't, I must, I will this, I will this project if I could recognize the contribution of our teacher, Professor Lakman residents in the university. The chief guest, also thinking the head of the psychiatry committee, Professor Amritsar. And the chairperson and members and organizers, people should not think this. And what kind of work that they place within the whole working team of so I'm just thank you for that. And so the only thing necessary for trying to do that is for dignity to another. He also said, one day we a teacher and she will study, that we will be nothing because we were everyone. I really believe that mental illness is essentially treatable because when we do not ignore it, and the lack of hospitalizing and professionals to treat it, this effect will go a long way in educating people. And I don't think she should be on her purpose. But if you could remember to help make a change, and the change will come. And we're going to pass it on. And we're quickly in each one of the way party. So thank you again, and have a great day.
So in the series, as we have with us Dr. Amresh Kumar Srivastav sir, whose book has just been launched. So we will now be requesting sir for his official talk. Meanwhile, while we are arranging for sir's presentation, I would like to read a brief about sir for all of you. Dr. Amresh Srivastav is a consultant psychiatrist working in the field of suicide behavior. He was Associate Professor of Psychiatry, Western University, and Physician, Healthcare. Dr. Srivastav has received his postgraduate training from the KEM Hospital, Mumbai, and from the University of Mumbai. He has also received membership of the Royal College of Psychiatry, UK, and a fellowship of the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. Sir has worked extensively for more than 20 years in India and was a consultant in UK for 3 years. And in 2006, Sir relocated to Canada. His papers and book chapters are more than 100. He is a reviewer of several psychiatric journals and member editorial boards, and is the founding editor of Archives of Indian Psychiatry, an official publication of the Indian Psychiatric Society, Western Zone. He is the founding director of a non-government organization for mental health, Prerna, which is in Mumbai, dedicated to suicide prevention. For founding Prerna, he received the Fellowship Award from Ashoka Innovators for Public, Washington, DC. The recipient of a number of research and service awards, Dr. Srivastav's work primarily focuses on clinical service, education, and research in suicidology. So I invite you, sir, for your talk today. Many thanks for this invitation. I continue, and I very pointedly want to make a point that let there not be a single college without a credible, effective, and comprehensive mental health promotion program for students. हम छात्रों की बातें क्यों कर रहे हैं? छात्रों की बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस उम्र में न केवल मस्तिष्क का विकास होता है, बल्कि व्यक्तित्व और आने वाले भविष्य की सारी संरचना हमारे सामने बनती रहती है। और ऐसे उम्र में जब मानसिक तनाव, जैसा कि हम देखते हैं, अगर आप रिसर्च के फाइंडिंग्स देखें तो आज अपने देश में कॉलेजेस में लगभग 30% स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि वे अधिक तनाव में हैं। लगभग 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी भी समय अपने दिमाग में आत्महत्या के विचार से जूझ रहे होते, और इसी तरह लगभग 10 से 12% बच्चे डिप्रेशन की परेशानी से झेल रहे होते। इतना ही नहीं, हम तो ये जानते ही हैं कि एडिक्शन, मानसिक बीमारियां, ये भी लगभग 12-13% लोगों में उपस्थित है। ये सारी चुनौतियां और अनेक मनोवैज्ञानिक चुनौतियां, घरों की तकलीफ, पैसे रुपए की तकलीफ, कॉलेजेस के वातावरण, अध्यापकों का न होना और सरकारों द्वारा दी गई सुविधाओं में जो कमी है, ये सब मिलकर छात्रों के जीवन को अत्यंत तनावपूर्ण बनाती है। तनाव के रहते हुए जीवन कठिन होता है, और इसलिए हमारा ये कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य के उपक्रम, मानसिक स्वास्थ्य को उत्कृष्ट बनाने के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए वो अत्यंत आवश्यक है। यहाँ हमें ये भी जान लेना चाहिए कि हर छात्र सफल होना चाहता है। छात्र ही नहीं, हम सभी सफल होना चाहते हैं। लेकिन सफलता क्या है? सफलता अपने लक्ष्य की प्राप्ति ही नहीं है, बल्कि लक्ष्य की प्राप्ति के साथ अगर जीवन सुखमय नहीं होता है तो उस उपलब्धि को हम सफलता नहीं कहते। इसलिए ये आवश्यक है कि हम हमेशा याद रखें कि
what lies between you and your success is your mental health. आप बहुत तेज हो सकते हैं, आपको भगवान ने सब कुछ दान में दिया हुआ हो सकता है, आपकी प्रतिभाएं अत्यधिक हो सकती हैं, लेकिन यदि आपका मानसिक स्वास्थ्य आपके तनाव को पहचानने, उसे कम करने के तरीके, मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करने के तरीके में यदि कमी है, तो सफलता कहीं कोसों दूर रह जाती है। आप अपने आसपास के जीवन में देखते होंगे कि बहुत से लोग जो अपनी इंडिया में भी रिसर्च में पाया गया है कि those people who succeed, about 30 to 40% of them develop a mental health problem in coming 10 years in their life. तो सफल होना एक बात है और सफलता को बनाए रखना एक अलग किस्म की चुनौती है। यहाँ हम ये भी जान लें कि यदि किसी को कोई मानसिक बीमारी हो गई है या कोई मानसिक तकलीफ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सफलता उससे छिन गई है। अच्छे इलाज, समय पर इलाज होने से लोग पुनः अपने चाहत को पा सकते हैं और सफल हो सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम देखें कि आज का दिन जो हम मना रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, यह एक नई तरह की परिभाषा हमारे सामने आई है। जैसा कि मैं कह रहा था कि जब हम अधिकार की बातें करते हैं, तो वेयर एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल, everyone is duty bound and everyone should be empowered. जब हम अधिकारों की बातें कर रहे होते हैं, तो जीवन मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, हमें जीने का अधिकार मिला है, मगर जीने के अधिकार की सार्थकता तभी तक है जब तक हमारी डिग्निटी मेंटेन है। डॉक्टर दलाल ने इस पर अच्छी तरह से बातें की हैं, इसलिए मैं ज्यादा इस बारे में नहीं कहूँगा। लेकिन एक नई परिभाषा जो निकल के आ रही है वो ये है कि कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया या कोई भी नियम कानून या किसी का व्यवहार, यदि वह मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक तरह से प्रभावित करता है, तो वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक नया रिस्क फैक्टर। इसलिए हमें अपने व्यवहार की तरफ ध्यान देना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे किसी और के मानसिक स्वास्थ्य में खलल पड़े। इस तरह यदि आप सोचें तो जलवायु की समस्या, वर्षा की समस्या, एयर पोल्यूशन की समस्या और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या मानसिक तनाव की समस्या, ये सब मानव अधिकार के दायरे में आएंगे। आज के बाद जब भी आप मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे, तो न केवल अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे, बल्कि दूसरों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी सोचेंगे। मेरे स्वास्थ्य की रक्षा का दायित्व मेरे आसपास के लोगों पर है, समाज पर है, सरकारों पर है। और इसी तरह सरकारों को या समाज के लोगों को उत्तरदायी बनाना, यह भी एक समाज के दूसरे वर्ग के लोगों का कर्तव्य हो जाता है। इस कड़ी में हम देखें तो पाएंगे कि अधिकार मतलब हम किस तरह के अधिकार की बात करते हैं। हमें अधिकार ऐसे चाहिए जिसमें मन की शांति हो, सुरक्षा हो, आदमी को सुख का अनुभव हो। मगर ये जीवन मिलेगा तो कैसे मिलेगा? मानसिक स्वास्थ्य की जड़ें बचपन से ही मजबूत होती हैं। इसलिए बचपन का वातावरण, जब हमारा विकास हो रहा होता है, उस वक्त जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है, उसमें जो कुछ सुधार होना चाहिए उसे किया जाना चाहिए। Any action, event or situation that may become a mental health risk will be violative of human right of others. ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज के इस संकल्प से निकल कर आती है और हम सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए। यह न केवल एक नई बात है, बल्कि एक नया संबंध स्थापित करती है लोगों का लोगों से, छात्रों का छात्रों से, छात्रों का अध्यापकों से,
लोगों का, उनकी सरकारों से, it is affecting the entire social consciousness and social behavior determinants. It defines how to connect to people, what is the value of social connectivity for each one of us. हमें सोचने की जरूरत है कि ऐसी बुराइयां जिसमें अब्यूज, ट्रॉमा, डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमिलिएशन, ये सारी बातें हमारे आसपास जब निहित होती हैं तो मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जाने कितने संस्थाओं ने इस पर रिसर्च किया है और सारी फाइंडिंग्स हम लोगों के सामने है। एक दूसरे के प्रति आदर, एक दूसरे के साथ संबंध, इसमें जो उम्मीदें, जो शक्तियां छुपी हुई हैं, उसे पहचानने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय के प्रांगण की बात करें तो अध्यापकों और उनके छात्रों के संबंधों के बारे में भी बातें होनी चाहिए और ऐसा वातावरण पैदा किया जाना चाहिए जिससे अब छात्र अच्छी तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, उन्हें संबल मिले, उन्हें अपने अध्यापकों के बीच एक साथी भी मिले। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जब हम सोचें तो थोड़ी फंडामेंटल बातें भी सोचनी चाहिए कि ये है क्या और कहाँ से बनता है, इसकी जड़ें कहाँ हैं। तो इसमें कुछ गुण तो हम अपने माता पिता से पैतृक तरीके से पाते हैं, फिर हमारे आसपास का सामाजिक वातावरण है, हमारे दिमाग में चल रही बातें हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, और जिस वातावरण में हम पलते फूलते हैं वह, और उसके साथ साथ हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो आध्यात्म है, हमारा जो कल्चर है, ये पांचों बातें मिलकर इंसान का व्यवहार और उसके मन की संरचना करते हैं। हम किसी भी विकृति के बारे में सोचें, इन्हीं पांचों में से कहीं न कहीं कोई कमी नजर आएगी। इसलिए यदि हमें अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की कल्पना करना है तो इन पांचों आयामों पर ध्यान देना चाहिए। मेंटल हेल्थ इज फर्मली रूटेड इन मदरहुड। ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि एक बार बच्चे के व्यक्तित्व का विकास हो गया, उसके मस्तिष्क की संरचना पूरी हो गई, फिर परिवर्तन लाना बहुत मुश्किल है। बच्चों के बाल विकास की जो अवस्था है उसके विशेषता उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। हमने ये प्रयास शुरू किया है मानसिक शक्ति, और हम लोगों से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे प्रयास से जुड़ें। तो आखिर क्या है ये मानसिक शक्ति? मानसिक शक्ति छात्रों के मनोवैज्ञानिक उत्थान का एक कार्यक्रम है जो हमारे कुछ साथियों ने भारतवर्ष में और विदेशों में हमारे साथ काम कर रहे लोगों ने मिलजुल कर शुरू किया है, जिसमें प्रमुख है फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी ट्रस्ट लखनऊ, जिसके मुखिया श्री द्विवेदी जी अभी आपसे बातें कर रहे थे, और श्री हेमंत दीक्षित वहाँ बैठे हुए हैं। उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और प्रोफेसर शीला मिश्रा, जिन्होंने इस झंडे को लेकर लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो बहुत पहले से इस विषय पर काम कर रही थी, हमसे जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आभार है। हम इस कार्यक्रम में 5 बिंदुओं पर बातें करते हैं। बहुत गहन चिंतन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये 5 बिंदु हैं जो मानसिक स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए छात्रों को उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसमें पहला है मेंटल हेल्थ एजुकेशन। इसके तहत मानसिक स्वास्थ्य की बातें छात्रों को अपने करिकुलम की पाठ्य पुस्तकों के साथ उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यदि सूचना होगी, ज्ञान होगा, तो मानसिक स्वास्थ्य की जो कमियां हैं वो जल्दी पकड़ में आएंगी और उस पर कार्यक्रम किया जा सकेगा। यह भी जानना आवश्यक है कि किसी को तनाव है तो कितना है। अभिभावकों के सामने, अध्यापकों के सामने भी यह प्रश्न रहता है कि कोई छात्र है तो हम कैसे जानें कि उसे तनाव है या नहीं है, क्या वो किसी बीमारी से जूझ रहा है या नहीं। इसके लिए हमारा कार्यक्रम है मेंटल हेल्थ असेसमेंट प्रोग्राम। हमारा प्रयास चल रहा है कि हम कंप्यूटर बेस्ड और मोबाइल ऐप बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। मेरा ख्याल है आने वाले 6 महीने में ये प्रकल्प सामने होगा, जिसमें
आप ये जान सकेंगे कि तनाव की मात्रा कितनी है, किस छात्र को किस तरह की सुविधा की आवश्यकता है, किसे खतरा है, किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और किसी काउंसलर से संपर्क स्थापित करना चाहिए। फिर इसके बाद आता है मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें न केवल अध्यापकों के लिए जानकारियों के कोर्स, बल्कि अभिभावकों के लिए और छात्रों के लिए भी ऐसे कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन प्रदान किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत हम पहले से ही कर चुके हैं। हर महीने के पहले हफ्ते में या तो 1 दिन या 4 दिन तक लगातार ये कोर्स हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध होता है, जो हर कोई उसमें जुड़ सकता है। हर महीने की 10 तारीख को शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक कोई ना कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट या मैं स्वयं उपस्थित रहता हूं, जिससे हमारा संवाद छात्रों से और उनके चाहने वालों से स्थापित हो सके। इसी के साथ साथ 5वां बिंदु है मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ रिसर्च, जिसमें हमारे सामने वे प्रश्न जिनके बारे में हम नहीं जानते कि तनाव का कारण उत्तर प्रदेश में क्या है और तनाव का कारण केरल में क्या है, दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए हम चाहते हैं कि हर यूनिवर्सिटी में जहां मानसिक शक्ति के कार्यक्रम लागू किए जाएं, वहां के लोग रिसर्च के माध्यम से भी हमसे जुड़ें, नई नई हाइपोथेसिस जो भी समस्याएं हैं उन पर गहन विचार हो और उस पर शोध हो। और इसी के साथ साथ लिखने पढ़ने और नए नए लिटरेचर बिल्डिंग या नॉलेज ट्रांसमिशन का प्रयास भी चल रहा है। इस तरह मानसिक शक्ति के 5 अंग हैं जो आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी प्रयास करते हैं कि हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो कार्यक्रम लागू किए जाएं, उसमें काउंसलर, साइकेट्रिस्ट, सोशल वर्कर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और बहुत से लोग जिनका योगदान रहता है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सिखाने बताने के लिए, उनकी वे वहाँ पे जुड़ सकें या उनकी व्यवस्था की जा सके। हमारा प्रयास सरकारों के साथ काम करना भी है और लोगों के साथ भी। हम चाहते हैं कि हर छात्र इस नए कार्यक्रम से जुड़े, हमें बताए कि उनके स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है और क्या किया जाना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं। आपने मुझे ये अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। हो रहा था, ये बंद क्यों हो गया? आवाज ही नहीं आ रही।
खत्म हो गया। ये ये पहनोगे तो फिर जैकेट की भी जरूरत नहीं है। अगर वहाँ अच्छा ठंडा होगा तो पहन लो जैकेट। खाना खाना चाहता आलू गोभी बनाना। उससे पूछा था खाना आपका, मैंने कहा दीजिए, तो मैं मांग बोलता वहाँ पे किसने पूछा वहाँ पे फोन आया था। कैमरा बंद कर दिया। देख, हम लखनऊ का प्रोग्राम चल रहा है। कई बार जानते हुए भी आप लोगों को लगता है कि जानते तो हैं, जानते भी हैं, पर बोलते समय हम फेल हो जाते हैं, क्या हो जाते नहीं होता। इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो प्लीज गोविंद नारायण व्यक्ति अच्छा हो गया। different from different platforms, and he has been really helping a lot all the youth, and he has been providing a lot of social service also, and he can also tell you like about this platform, so that in future you can contact him. And Shivani, I know she has also done her internships and she's an expert, at least to her level. She needs to learn a lot. So you know, please raise your hands that this is the good opportunity to talk to us. You're welcome. Good morning, everyone. I'm sure I've been in this field for trustworthy. Counselor, thinking coordinator. We understand the challenges that in terms of parent-child relationships, in terms of your career options. In terms of what Shivan said, our pricing aspect in 2000, what we quoted is something for one session. And the aspect of what she said that the Christ University is offering, in fact, Lucknow University, having lab is also giving free counseling services. So, how counseling services, session counseling service. Would you want to understand that? Would you want to understand what is the concept of spiritual counseling? What is the concept of human-based living? And why is it a bit have something we can solve and share? What is the average time on the treatment with the medicines of the what you can say? I think the effort was the specific of the
Okay, would you like to? Yeah, sure. Hi. So depression बहुत ही wide spectrum का disorder है. Depression which is जैसे कोई आपके पास आया उसको बोला मैं सैड हूँ तो आपने बोला ओ तुम डिप्रेस्ड हो अगले 6 सेशन में आओ तो तुम ठीक हो जाओगे. डिप्रेशन की सिवियरिटी पे डिपेंड करता है कि उसमें हर डिप्रेशन के सिम्टम के लिए आपको मेडिकेशन नहीं मिलेगा बिकॉज डिप्रेशन इज समथिंग curable by a lot of behavioral therapies. आपको कितना समय लगने वाला है अगर मान लीजिए आपका कोई एकेडमिक चैलेंज है आपका एग्जाम अच्छे से नहीं गया और उसकी वजह that your child has become depressed. The cognitive behavioral therapy के through जाएं like 6 to 12 sessions is what it would take कि आपके to see marked improvements your child and उसके बाद if they continue their the skills that they have learned so that could be very beneficial. अगर आपका major long term depression है then something you need lifelong medication for. अगर मान लीजिए genetic है hereditary है या फिर it is related to some disease तो मान लीजिए they have because of the medication that they are going through या फिर they are the ultimate thing they might die. You don't have a fixed timeline. What you do know is आपका जो भी आप first session जब से जाएंगे तब से लेकर last session that is how you are. आप कितने अच्छे से उसको समझ पा रहे हैं आप कितने अच्छे से उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं and medication is a last resort in psychiatry. Medication is given to patients with depression. We moderate. Why is it given? Because it's not overthinking and these patients involve. So calm their state of comparative relaxation, these medications are involved. But it is supplemented with mindful support. It is supplemented with talking. It is supplemented with listening. It is well as for example, I have going and I'm also do something else. And I speak to each tall boy comes to a very way. He was in that and he took it in IOS. So he underwent torture. I'm not making this too complicated because things now they will not make he will not speak and try to respond. And when medicine took me, it took 2.5 months. He was coming to work. Unfortunately, he asked to come. And now the child is back in school. He off medicine. He's not taking medicine. And he's talking confidently. He's looking into the eye and he's talking. And when he left, you know what he said? He said, "Not me, आप ठीक हो, आपने मुझे ठीक नहीं किया." Oh wow, that was a great achievement. हमने कुछ नहीं किया. So, as Shivangi just mentioned, counseling is very powerful, which people neglect. Now, I also want to talk about the money aspect. So, I mean, we charge when we professionally, we have to sustain our organization anything between 2,000 to 3,500 rupees per session. एक सच नाइन उन्होंने कहा कि 500 रुपए में काउंसलिंग होती है आपको कर लीजिए तो हमने तो कहा हमने ऐसे काउंसलर्स बनाए एक कमिश्नर है वो बनाए हुए तो हमारे पास आए उनका शोभित हम चैरिटेबल काम आप करते हैं हम फ्री टाइम देंगे 3 घंटा 4 घंटा हमने कहा ठीक है भाई साहब हम एक प्रमोशन बना देते हैं और हमने कहा आप उनसे करा लीजिए काउंसलिंग आप समझ रहे हैं आप उनसे करें काउंसलिंग
जाएंगे, एक बार होटल जाएंगे, 500 ओपीडी के लिए जाएंगे, और 2 की दवाई, और फिर 4 दिन के साथ फिर दोबारा कंसल्ट करके जाएंगे, जोड़ देंगे जब क्योंकि यहाँ पे क्या लगता है आपने किया है तो बातें को फुल कर देंगे फुल करने से एग्जामिनेशन फेवर अगर स्टूडेंट जो खुद क्या से बात करना आप खुद सोचें आप जब तक प्रॉमिस किया कि हम सुबह से मुझे उठेंगे आपने आपसे प्रॉमिस किया कि मुझे एक स्टैटिस्टिशियन बनना है उसके लिए मुझको इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब देनी अपने से प्रॉमिस करके अपना वो मेरे घर में एनवायरनमेंट क्या बोल रहा है अगर वो क्या करेंगे तो इस तरह से जो सेल्फ जस्टिफिकेशन और पेरेंट्स या फिर जो हमारे पीयर्स हो गए वैसे तो टीचर्स से की बात नहीं I can see Because we are talking about all this such a big field, but we want you to talk. Yes, please. My meditation. No, meditation. Yeah, it will not. So I want to say that there is a that this time in which meditation actually stops. जैसे शिवांगी जी ने कहा और हमने शुरुआत में यहाँ पर एक्सपर्ट्स को सुना डिबेटिंग ऑफ द सिंपल सिवियरिटी एक हमारे पास तमाम लोग 35 साल से वो भाग रहे 65 इयर्स के सचिन ने शक्ति पावर शक्ति पावर अशोक मान पे वहाँ पे सीनियर मोस्ट पोजीशन से वो रिटायर आईक्यू बहुत हाई है इस समय की वाइफ बेटी बच्ची बेटी मैनेजर वो लेकर आई थी हमारे पास आईक्यू में बात को एक अंडरस्टैंड तो ऐसे में एक मेबी 6 मंथ ही इज इनटू और वो सबसे कर रहे थे बहुत समय लिया वो एज एक गाना पे एक हमारे पास लड़की आई 17 साल की 4 साल से वो जॉब में थी ये बना दवाई नहीं खाई हमारे पास और वो extremely confidential this is little tough to follow. So, psychiatrists and counseling psychologists to counselor. Psychiatrist क्या करते हैं उसको ट्राई कर देते हैं लेकिन उसके बाद में वो रेशन कर देते हैं करेंगे कहते हैं आप दवाई खाइए पॉजिटिव सोचिए थिंकिंग और सब ठीक हो जाएगा भगवान को याद क्या होता है दवाइयां चलती रहेंगी सपोर्ट थेरेपी आपके लिए आप इसे काउंसलर के पास से ग्रैटिट्यूड पॉजिटिव कुछ है तो कुछ टेंशन हुआ तो ये किस कारण बताया गया था छोड़ के घर वाले कहाँ छोड़ के रिहैब सेल में छोड़ के एड्रेस नाम बदल दिया तो क्या वो वैसे
और 5 के समय में किसके पास टाइम है, आप बताइए। हाँ, जल्दी बोलो, चलते चलते बात करो जो करनी है। क्वांटिटी का है, क्वालिटी का है? The last, yes, please. My question is that if we currently analyze the condition of India, we have a very shortage of psychiatrists. So when we talk about the mental health, how can we bridge that thing between the neurophysicians and psychiatrists? Because people, when they try to give with their solutions, they do not find. If you talk about, we have not found that. So who are out of reach from the mainstream, they will, how they can approach the mental health. For this specifically, मैंने इसीलिए mention किया था कि nowadays you have to be there. Therapy हम लोग को पता है psychiatrists, counselors के नंबर काफी कम है. That is very related to the fact कि कितना stigma around associated है इस field के साथ. पागलों के डॉक्टर या पेरेंट्स को बोलो मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है, बोलते हैं अच्छा है, उसको पता है वो है, एट द सेम टाइम इतने कम नहीं है, तो मे बी आप इन पर्सन नहीं Zoom, ये सब जो अभी as face-to-face therapy in person, so you can always avail option, and that is also sometimes significantly cheaper than getting and going in person. So if it is not possible for you to be there, if you cannot go to a therapist, अपने आपके आसपास कोई नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं कि आपको Because we are running short of time, please end this time. There are any quick questions. Oh yes, my friend graduate thesis was on bibliotherapy and cinematotherapy, and it's a very upcoming field. Like my time के constraint की वजह से I did not go about it, but in my slides I had mentioned कि therapy is not just आप जाओगे वो expert आपको there's bibliotherapy, there's animal therapy. It doesn't have to be boring. इधर बैठा है आप काउच पे जाके लेटोगे, आप उसके साइड बताओगे, ड्रीम्स के बारे में बताओगे, वो इंटरप्रेट करेगा, वो आपको बता देगा अच्छा ये खराब है, ऐसे ही कर दो. There can be so many mediums of you to be able to live a more productive life. As like field, so like so art therapy center. India. Association. Yes, please. Thank you. Thank you. So any quick comment? I think ma'am wanted to say something, so you can just pass the mic. So I'm Dr. Rana, to ask therapist, and I think the previous question a little bit answered my question too. I wanted to know your views on how do you think we can be a good combination of expressive aspects, music, drama, poetry, along with talk therapy, because at times, people don't know what to say, they go silent, and it's very difficult to break that wall, and even what they're speaking may not always be the right thing. It's not easy to interpret if they are getting the right problem. So how to address it without knowing. So as you just actually answered your own question, कि talk therapy में ना आप as someone who has therapy, my moment therapist asking for what कुछ नहीं क्या प्रॉब्लम है, वर्ड्स ही नहीं पता चलते हैं, एंड आर्ट राइटिंग से आपकी
might आपका ब्रेकअप हो रहा होगा तो आपकी स्पेसिफिक कोई वीडियो सुन रहे होंगे. That's a form of expressing yourself, and that's how we use music in art, in reading, in writing to be able to express yourself more beautifully, more creatively. आप दिन भर यहाँ पे statistics पढ़ते रहते हैं, आप भी काफी बोर हो जाएंगे. I don't even know how everybody is able to be able to live life more creatively. Problems को आप life में रखने की जरूरत है. You can express and you can find solutions in the most creative way possible. Therapy is a very, very opportunity that is present now. All groups, all you want to say something else? क्या हमें ये करना चाहिए या फिर जिन किसी में प्रॉब्लम है उस चीज के अगर वो पढ़े उसके पास जो उसकी बातें करूँ प्रॉब्लम हो रहा है अपने माइंड में कोई प्रॉब्लम है फिर क्या करना चाहिए थोड़ा या फिर कुछ और पहला एक क्वेश्चन फिर क्वेश्चन थी जो सिंगल फ्रेंड आता तो वो ज्यादातर रूरल एरिया में प्रॉब्लम है या फिर अर्बन एरिया में सब एक फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन की मेरे फैमिली में एक लाइक मैंने देखा है भाई आई क्या प्रॉब्लम है बेसिकली लाइक उनका हाथ पे like she was biting और सबसे पहले अपने रिश्ते के अंदर बहुत चुप रहती थी बहुत कम बातें करती थी उससे या फिर बहुत कम कुछ चीजों को देखती थी अपने मन में वो करती गई उनको जवाब नहीं तो फाइनली इसको मेडिकेशन हुए और मैंने क्या किया उनको सजेशन देते थे आप उस पर्टिकुलर लोकेशन से दूर लाइक कभी वहां जाते नहीं तो एक मैरिज इवेंट था उसका नहीं प्रॉब्लम तो जब साइकियाट्रिस्ट से मिला मेडिकेशन चली और स्टार्टिंग में 5 ड्रग और लास्ट में अभी रिसेंटली रिसीनिया प्लस चल रहा है और तो क्या ये ड्रग को हम एलिमिनेट कर सकते हैं रिसेंटली कैसे तो क्या हम ड्रग को एलिमिनेट कर सकते हैं 3 ट्राई एक्सेप्ट और 2 एमजी करके क्या इसको हम मिनिमाइज करके एलिमिनेट कर सकते हैं तो ये दो चीज I would like to respond to your first question first. As you said, like religion and spirituality, how you can help you. So definitely, suppose you are looking for a job and somebody, say head of institution or maybe head of the state or head of the country, comes to you and says, "Oh, don't worry, I'll look after you." So if you are looking for a job and say, Prime Minister says, "Arey, don't worry, I will look into it." Then what you and how you will feel? You just tell how you will feel. What will be your expression? You will feel bad or you will feel happy. And if anyone says, "Don't worry about it, I'll take care of it," and I'm confident enough also. I have the capacity to give you the job, and you are coming to me for the job, and what will be your stress level then after listening to it? You are coming for interview, I'm taking interview, and I'm saying, "Don't worry, I will take care of it." And you have trust on me that if I have assured you, and then so that is the thing, the spirituality and religion. There is somebody जिसके ऊपर आपको पूरा ट्रस्ट है, आपको मालूम है कि वो आपके साथ गेम नहीं करेगा, एंड अल्टीमेट जो पावर है उसके पास है, उसको सरेंडर करके अपनी सारी वरीज आप क्या करते हैं, हैंड ओवर करके निश्चिंत होने की पावर रखते हैं, बैठ सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, हमें लगता है कि लाइफ में हम सब कुछ अपने आप कर रहे हैं, पर फैक्ट तो ये है कि आपके अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो आपको पता ही नहीं है। किस तरह से आपका दिमाग काम कर रहा है, इस समय जो आप सुन रहे हैं वो सुनने की कैपेसिटी किस तरह से काम कर रही है, कुछ नहीं पता। आप जो खाते हैं मुंह में टेस्ट के बाद जब अंदर जाकर के वो बॉडी में कैसे एनर्जी में और आपके फ्लैश में कन्वर्ट हो करके आपको ग्रो करता है, आपको ये नहीं पता, और आपका इसके ऊपर कोई कंट्रोल है भी नहीं। लाइफ में बहुत सारी चीजों होता ही जो लिमिटेड फ्री विल है, सिर्फ उसी को देख करके आता है कि एंड इफ इट इज नॉट हैपनिंग द वे यू वांटेड इट टू बी,
आपकी करनी है, आप कहीं पे अपने आप को स्पिरिचुअलिटी का जो तरीका है वो है कि आपको जैसे गीता में कहा ही क्या है, कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप अपना एफर्ट बेस्ट करिए, लेकिन के बाद आपका रिजल्ट होता है बहुत सारे इंटरैक्टिव फैक्टर के कारण मिलता है। तो अगर आपने किसी जॉब में अप्लाई किया, किसी एग्जामिनेशन दिया, उसमें पेशेंस से नहीं आए या कुछ भी नहीं हुआ, तो ईश्वर नाम का जो एक हमारे अंदर विश्वास है, उसके ऊपर सरेंडर करके हम बहुत हल्के हो जाते हैं, लेकिन उस पर सचमुच विश्वास होना आवश्यक है। और उस पर विश्वास न करने का आपके पास कोई कारण नहीं है। इसका हम लोग अलग से, क्योंकि डिपार्टमेंट में हम लोगों ने एक नया करिकुलर कोर्स शुरू किया है हैप्पीनेस एंड वेलबीइंग में, तो इस दिन शोभित जी को बुला करके हम लोग इस पर डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। तो वो हमारा पौने 4 से पौने 5 तक कोर्स चलेगा, दैट इज फॉर ऑल साइंस ऑफ फैकल्टी स्टूडेंट के लिए। तो डिटेल चर्चा करेंगे, शॉर्ट में कुछ शोभित जी। Then we need to understand the difference between psychiatrists, clinical psychologists, counseling psychologists, chronic work, and an emotional counselor. ये सब अलग-अलग चीजें हैं. So what does a clinical psychologist do? Do we know that? जैसे अगर मान लीजिए हमें कुछ anxiety हो गई है, या घबराहट के बहुत पसीने आ रहे हैं, आप किसको देखेंगे? तो ये सब बातें भी समझनी होती है, and it's really a very interesting thing, and I really thank Sheila ji for giving us the opportunity, and congratulations everybody on the celebration of work. Thank you. And the second question he said, so for that, I think we can contact Professor for his expert opinion, because that is very subject specific. We are not expert of the psychiatry, we are helping with medicine. So that I will leave it to. Okay, so thank you very much. We can. Thank you so much. I know we are running short of time, and just out of curiosity, there is a very small question to Shobit. You mentioned about spiritual counseling. So just out of curiosity, could you please explain in 3 lines exactly what spiritual counseling is about? And I mean, I heard this for the first time. So In fact, it's a course by NMI University on spiritual psychology. So, in simple terms, it means spiritually in awareness and in touch with the human mind. So, operating and counseling परामर्श एक पूरा प्रोसीजर हमें एक मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर और मानवीय मूल्यों की जागृति पर फोकस करके जब हम परामर्श का ये सत्र करते हैं तो फिर वो स्पिरिचुअल काउंसलिंग के अंदर रह जाते हैं. So we talk about determination, strength, we talk about संवेदना कैसे पेश करते हैं, संवेदना किस अहंकार में जोश में, तो ऐसे इन सब बातों को लेकर परामर्श करने का उच्चारण किया जाता है आध्यात्मिक अनुवेदनी. So we end this. I know none of us sitting here want this seminar to actually end, because these are certain issues which need to be discussed and talked about. But since we have paucity of time, so we are coming to the end of this seminar. I invite. One last thing I want to say that all students must go to the main laboratory. Dr. Malika Pradhan is there, and to understand more about spiritual psychology, more laboratory खुली रहती है सुबह 10 से 2 बजे तक. आप लोग जाइए, you can take all the benefits. Lucknow University आपका विश्वविद्यालय free of cost services दे रहा है. बाहर जाएंगे तो आपको तो पैसा देना पड़ेगा मुफ्त में. Our Department of Statistics since 2016 is running the meditation classes every week, and local students are also every week. So you can avail that opportunity in your department itself. So if you are more interested, just contact the students, research scholars in room number 354, and you will know more about it. Thank you. So I invite Dr. Lumika, one of the organizing secretaries of this seminar, to propose the vote of thanks.
Thank you so much, Dr. Shamil. And I would like to thank Shivani Shi and Shobit Narayan Ji for this important session with us today. And I think जितने भी ऑडियंस हमारे यहाँ बैठे हैं उन सारे ही लाभान्वित होंगे सर के आंसर से और जो मैम ने आंसर दिए हैं आपको अपनी बहुत सी समस्याओं का समाधान भी मिल गया होगा कि हमें आगे क्या करना है. Because the day which we are celebrating today, that World Mental Health Day, इससे हमने ये जाना कि एक हेल्दी लाइफ और हेल्दी बॉडी के साथ साथ मेंटली हेल्दी होना भी कितना जरूरी है. और जो मेंटली हेल्दी नहीं है वो एक खुशहाल जीवन नहीं जी सकता. तो इसलिए हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि सिर्फ हम हेल्थ पे ध्यान न देके साथ साथ हमें एक हेल्दी माइंड कैसे डेवलप करें इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए हमें हेल्दी इन्वायरमेंट की भी जरूरत होगी. जैसे प्रोफेसर दलाल ने कहा कि रोज सुबह जल्दी उठें और एक्सरसाइज करें, योगा पे ध्यान दें, लेकिन कब, जब सनलाइट. तो एक स्वस्थ एनवायरनमेंट भी बहुत जरूरी है. और साइंस ने कहा था कि इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है. तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे यूथ हो, चाहे किसी भी एज के लोग हो, चाहे मेल हो या हो, सबकी लाइफ की अपनी अपनी प्रॉब्लम पैरेलली चलती रहती है. लेकिन मेरा कहना है कि अपनी प्रॉब्लम्स को इतना आप प्रोमिनेंट मत बनाइए कि वो आपके जीवन से ज्यादा हो जाए, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रीशियस है आपके लिए भी, आपके पेरेंट्स के लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए. So now I move to official vote of thanks on behalf of Department of Statistics as well as my personal behalf. So I, Dr. Ruhi Yadav, is one of the organizing secretary of this seminar. I would like to express my heartfelt gratitude to our chief guest, Professor P.K. Dalal sir, who is former head Department of Psychiatry, HMU, who is in spite of his busy schedule, raised the occasion and enlightened us with the words of wisdom. Then our sincere gratitude to our Honorable Vice Chancellor, Professor Alok Kumar Rai sir, for his visionary leadership, guidance, and continuous support in all activities aimed at making University of Lucknow an institution of excellence. His consistent motivation and guidance have enabled us to organize the seminar in an effective manner. Then I would like to thank our dean and chairperson of this seminar, Professor Vibhuti Rai sir, who extended his guidance and support at every step. I would like to express our sincere thanks to the keynote speakers, Dr. Amresh Srivastava, who is Professor Emeritus of Psychiatry, Western University, London, Ontario, Canada, and another keynote speaker who is Dr. Shiven Dwivedi, President Chief, Department of Anesthesia, Sandhar Academy Hospital. Our guest, Dr. H.K. Dixit, and Ms. Shivani Shi, Mr. Shobit Narayan Ji, who presented their views on mental health and through the light of this impact, and how we overcome all these difficulties. Then our sincere thanks to our HOD, Professor Masood Siddiqui sir, and all faculty members, including all the guests who are present over here. Our thanks and gratitude to the all administrative heads of the university for their support in organizing the seminar. With a special mention to the Superintendent of Works, Superintendent of Garden, Chief Proctor, Director IPPR, media persons for their continuous support and coverage. And it is my duty to acknowledge the efforts of all administrative staff and support staff, all research scholars, dear students, and our volunteers for their continuous supports and their involvement in all the tasks. At last, but not the least, my heartfelt thanks to Professor Sheila Mishra ma'am, who is convener of this seminar, for his helpful efforts. Thank you so much, ma'am, to organize such a wonderful seminar, जिससे कि हम सारे स्टूडेंट्स को सीखने को मिला. So once again, thank you all. Thank you so much. Like the two most important persons who were not tagged by themselves, so it is
our organizing secretaries also. There's Dr. Rohini Yadav ji, she's standing here, so big round of applause for her. And Dr. Shambhavi Risha also, please. And all our colleagues, Dr. Ashok Kumar ji, Dr. Mukesh Kumar ji, and definitely she has named everyone in the list. So as a token of our appreciation for both our organizing secretaries, I would like to request our HOD to please give them these plans on behalf of everyone. So, to Dr. Rohini Yadav, please. Thank you. And Dr. Shambhavi Risha. And definitely, I would really like to give a huge round of applause for all volunteers who have been working day and night. Please stand up at your places. You can just come in front of us. Please stand here. Everyone, we can have a quick group photograph also. And afterwards, when we finish, we will be standing for the last round. So please come. All the volunteers first, please. Everyone. So this is the huge team who has been working day and night since we announced this workshop. So it is our greatest pleasure to introduce all of them to all of you. Please come. So as you can see, because of the classes, many students have been really moving on from this class to outside. But this is the team who has been like the technical team, the decorating team, the hall management team, and the food committee and the tea committee and everything. So please see that these are the people. So I would like to request our teachers and other guests also to please join the team of volunteers for a quick photograph. We can go down. ये लोग ऊपर आ जाएं, कुछ लोग भी can go. Teachers can come up on the dais, please. Okay, please, all the guests. All the guests and the teachers, Dr. Mishra, we request you also to join us. And all the research students also, if there is less space, you can join us on the dais. Find the space for yourself. Some of you can just sit down, be volunteers. Don't go out of the fray, definitely. And our guests also, please join us. Please, you also. Please. You also, please come, join us. And rest of the students also, if you want yourself to be in the frame, come quickly. Find place for yourself, and you all are coming in that frame. You can join, but this is your duty. How you can find the place? Everyone, please come quick. Yes, see students, please. I don't think I need to request you separately. Huh? Everyone, we have a smallest participant who is just see. That is this explaining the need of mental health from that age to any age you live. सबके सब आ करके अपनी जगह बना लो, ऐसे ही जिंदगी में करना पड़ता है. लोग आपको स्पेस अपने आप बुलाकर दे या ना दे, just try to fit in appropriately wherever you can manage. That's great. So फोटो लेने के लिए थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, किसी और को आना पड़ेगा इधर. हाँ, एक कोई और चले जाओ और थोड़ी उसको वीडियो जैसा या पैनोरामिक व्यू में भी ले लेना, जिससे कि कोई भी छूटे नहीं. Okay, so अभी खुश होके जाना है, mental health को अच्छे से uplift करके रखना है. Now you can just go to your places and we will just have the last one.
राष्ट्रगान अभी हम लोग सब लोग राष्ट्रगान करके फिर यहाँ से जाएंगे स्टैंड ऑन टू प्लेस और राष्ट्रगान शुरू करते हैं। So, congratulations.